Hello student, I hope you are following to me and enjoying also. I have explained electric field. Now I will explain physical significance of electric field. In electrostatic means a charge is in rest position, create electric field around it. If we bring another charge in this electric field, it experiences a force. So we calculate the direction of the force also. Electric field is a scalar quantity. So Q is the point charge which create the electric field. Q naught is the test charge which does not create the electric field. It just experience. So in this area, we put a test charge Q naught. It experiences a force. The formula will be F is equal to Q naught E. E is the electric field, Q naught is the test charge, F is the force. In electromagnet, when a charge is accelerated, so it creates electric field around it. This is a charge which is moving or accelerated. So it creates electric field which move with speed of around it 3 into 10 to power 8 meter per second. So both static position or motion position creates electric field. So this is the physical significance of electric field. हमें विद्युत क्षेत्र के बारे में जानना है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, उसका क्या महत्व है. देखिए, सबसे पहले हम स्थिर अवस्था के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक. जब हमारा आवेश स्थिर रखा हुआ है तब वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, और अगर उस विद्युत क्षेत्र में कोई एक अन्य आवेश लेके आते हैं तो उस पर या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगता है. तो जो आवेश है उस पर हम बल को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बल क्या होता है विद्युत क्षेत्र में, F बराबर Q नॉट E. Q क्या है, पॉइंट चार्ज है. पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है जो विद्युत क्षेत्र पैदा करता है. Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है जो कि विद्युत क्षेत्र पैदा नहीं करता, उस क्षेत्र को महसूस करता है. तो हम विद्युत क्षेत्र में बल को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो F इज इक्वल टू Q नॉट E. अब हम पढ़ते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. जब कोई आवेश त्वरित होता है, त्वरित गति से मूव कर रहा होता है, यानी त्वरण पैदा होता है, यानी एक्सीलरेटेड है. एक्सीलरेटेड का मतलब है कि वो समय के साथ अलग अलग चालों से गतिमान है. जब कोई आवेश एक्सीलरेटेड होता है, त्वरित होता है, तो वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र पैदा करता है. और ये चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है वो 3 into 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड ये वेग से पैदा होता है. तो ये जब चार्ज त्वरित होगा तो उससे भी हमारे को विद्युत क्षेत्र मिलेगा, और सेम गणना हम कर सकते हैं जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था. यही हमारा महत्व है समझने का विद्युत क्षेत्र का. नेक्स्ट पॉइंट, एरिया वेक्टर. ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया. A vector which is perpendicular to the area is called area vector. So ds is the area and n is the direction. So area vector represented, ds vector is equal to ds dot n cap. Next point, electric field line. We know the electric field line represented by E vector. It starts from positive charge and terminate at negative charge. So this is the representation of electric field line. Next point, electric flux. Electric flux represented by the phi. Number of electric field line passing through an area is called electric flux.
number of electric field line passing through an area is called electric flux. Let us consider these are the electric field line which is shown by A vector. There is an area which is placed in electric field line at an angle theta. So this is the area vector which make angle theta. So next point is electric flux through a small area. How much flux pass through this area? So we take the horizontal component of area into the direction of electric field. So we take the cos component in the direction of electric field. So a small flux pass through this small area d phi represented by vector E dot ds vector. Next point, electric flux, different cases. We know the small flux d phi equal to E dot ds. So the unit of electric flux, electric field unit Newton per coulomb, and ds is the area unit is meter square. So flux unit is Newton upon coulomb into meter square. We explain cases, different cases. Case number 1, if theta value is 0. Theta value 0 means there is electric field line, and in the direction of electric field line there is the area vector. So the angle is theta. So put the value of theta d phi equal to E ds cos theta and put the value of theta 0 degree. We know cos 0 value 1. So d phi is equal to E ds. We get the maximum flux which passing through an area, as well as positive flux also, because there is a direction of area vector as well as direction of electric field. Case number 2, theta 90 degree. Theta 90 degree means this is the direction of electric field line, this is the area vector direction. So there is an angle of 90 degree. So theta is 90 degree. Put the value of theta in the formula d phi equal to E ds cos theta. E ds cos theta value 90, cos 90 value 0. So when a area vector perpendicular to the direction of electric field, no flux passes. No flux. Case number 3, when area vector opposite direction to the direction of electric field line. This is the direction of electric field line and here is the direction of area vector. So both have 180 degree angle. So there is a theta is 180 degree. Put the value of theta 180 degree. So we get d phi equal to E ds cos 180 degree, and cos 180 degree value is -1. So flux we get minus E ds. So in this case we get the negative flux. So these are the 3 cases we have explained. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स जो होता है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि छोटा जो फ्लक्स गुजरता है छोटे एरिया से, तो सूत्र होता है उसका डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. उसका जो मात्रक निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और टेस्ट चार्ज का मात्रक होता है कूलम, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर. तो फ्लक्स का मात्रक निकल के आता है, क्या आएगा, न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर. ये केस है हमारे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3. ये सभी के सभी केसों को हम छोटे फ्लक्स के लिए ले रहे हैं कि छोटा सा एरिया, छोटा ही फ्लक्स गुजर रहा है. तो देखिए, जब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी दिशा में हमारा एरिया वेक्टर भी है. तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या एंगल हमारा, 0. तो जब 0 डिग्री एंगल पुट करेंगे फॉर्मूले में, सूत्र में, तो डी फाई इज इक्वल टू, जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा आता है. तो यहां से मिलेगा ई डी एस कॉस थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1. तब हमारे को फ्लक्स मिलेगा ई डी एस. तो अब देखिए, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसी डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स पास होगा, और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा। केस नंबर टू में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। विद्युत बल रेखाओं की 90 डिग्री कोण बना रहा है एरिया वेक्टर जो, तो दोनों में 90 डिग्री का कोण है। सूत्र से चले डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा होता है। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब है कि जब एरिया वेक्टर जो है विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है, यानी 90 डिग्री कोण बनाता है, तो उसमें से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरता। केस नंबर 3 में क्या आता है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके विपरीत दिशा में एरिया वेक्टर है, तो दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, दोनों में कितना कोण होगा, 180 डिग्री। तो सूत्र में रखेंगे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा, और उसमें थीटा की जगह 180 डिग्री वैल्यू रखी, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस 180। कोस 180 की वैल्यू -1 आती है, जो कि आएगी -3ds। इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें जो फ्लक्स है वो कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है विद्युत बल रेखाओं में। तो ये इस तरीके से हमने 3 केसों को समझा। नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। Consider a conductor of length having charge q distributed, continuously distributed. We calculate the linear charge density lambda, charge per unit length. The unit of charge is coulomb, the unit of length is. When charge continuously distributed on surface area A, which having the charge q, तो surface charge density sigma is equal to charge per unit area. The unit of charge coulomb, the unit of area meter square. The charge continuously distributed on the whole body having volume V, charge Q. So the volume charge density rho is equal to charge per unit volume. The unit of charge is coulomb, the unit of volume is meter cube. हम चार्ज का सतत वितरण के बारे में समझेंगे। पहला पॉइंट है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा है हमारा सरफेस, यानी सरफेस चार्ज घनत्व। तीसरा है हमारा आयतन चार्ज घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्र आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और आयतन आवेश घनत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। अगर हम कोई आवेश एल लंबाई का अगर उस पर चार्ज क्यू दें तो वो समान रूप से वितरित हो जाता है। तब रेखीय आवेश घनत्व का जो सूत्र है वो हो जाएगा लैम्डा बराबर आवेश बटे लंबाई, यानी Q अपॉन H। तो आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर। जब हम कोई आवेश Q किसी क्षेत्र A पर देते हैं तो वो चार्ज जो है आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। तब हम क्षेत्र आवेश घनत्व को यानी सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे, उसकी गणना करेंगे चार्ज बटे क्षेत्रफल, यानी Q अपॉन A। आवेश का मात्रक होता है कूलम, क्षेत्र का मात्रक होता है यानी क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यह है हमारा आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व का ऐसे समझेंगे कि हमने कोई Q आवेश किसी बॉडी को दे दिया, किसी आवेश से जो चालित बॉडी है उसको दे दिया, तो चार्ज क्या हो जाएगा, यानी आवेश क्या है, उस वॉल्यूम पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तब हम आवेश घनत्व को कैलकुलेट करेंगे, उसकी गणना करेंगे। तो ये हम आयतन आवेश घनत्व जो है उसको रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो बराबर हो जाएगा आवेश बटे आयतन, यानी Q बटे V। आवेश का मात्रक कूलम
और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। इस तरीके से हम चार्ज को समान रूप से वितरित करने की अलग अलग तरीके से गणना की है। और हम देखिए ये रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्र आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व को हम गणना के द्वारा यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। When two equal and opposite charge are placed at a distance. When two equal and opposite charge are placed at a distance is called electric dipole. Next, electric dipole moment represented by the symbol P. The product of a charge and distance between them. The product of a charge and distance between them is called electric dipole moment. The direction of electric dipole moment is from always negative to positive. Means electric dipole moment direction is from negative charge to positive charge. Electric dipole moment represented by the formula P vector is equal to Q into 2L. The unit of electric dipole moment, the unit of charge, coulomb, the unit of distance, meter. So the unit of electric dipole moment is coulomb into meter. हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में मालूम करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। कि जब दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हों तो इसको बोलते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से मान लिया कि 2L डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 2L की दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये जो फिगर है ये क्या कहलाएगी हमारी विद्युत द्विध्रुव। अब हम चलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसको P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र आएगा P वेक्टर बराबर होता है Q इंटू 2L। कोई भी आवेश हो सकता है और 2L क्या है उनके बीच की दूरी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2L। हमेशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो देखिए, आवेश का मात्रक कूलम, दूरी का मात्रक मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो होगा कूलम इंटू मीटर। Remember to subscribe my channel and push the bell icon to stay updated with my uploads. Thank you very much.